جو اصول حدیث کا سبق ہے اس کے اندر سب سے پہلے تو مطلب ہے کہ اس چیز کی ہمیں اہمیت معلوم ہونی چاہیے کہ دین کی بنیاد سند پر ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اگر فاسق کوئی خبر لے کر آئے تو اس کی تحقیق کرو۔ یہ دنیاوی امور کے متعلق ہے، تحقیق کا حکم ہے۔ تو دینی جو امور ہوں گے ان میں تحقیق تو بالاولیٰ پھر کرنی ہوگی نا۔ صحابہ اکرام ہر معاملے کی پرکھ کرتے تھے، محدثین نے ہر مسئلہ میں تحقیق کی۔ تو جس چیز کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگی اس میں تحقیق مطلوب ہے۔ تو صحیح اور ضعیف روایات کے درمیان فرق کرنے کے لیے جو بنیاد ہے وہ کچھ قواعد ہیں جن کا تعلق حدیث کے ساتھ، حدیث کے فہم کے کچھ قواعد ہیں اور حدیث کی صحت کے کچھ قواعد ہیں۔ یعنی جس طرح کے پیچھے آپ لوگوں نے حدیث کو سمجھنے کے لیے اصول فقہ کو پڑھا تھا کہ یہاں حدیث کا معنی کیا ہے، یہاں اس کا ظاہری معنی ہے، یہاں دلالت ہے، یہاں حقیقت شرعیہ ہے، لغویہ ہے، عرفیہ ہے، یہاں کس کو آپ نے کس پہ مقدم کرنا ہے، عام ہے یا اس کی تخصیص ہے یا نہیں ہے، اگر بظاہر تعارض ہے تو اس کو آپ نے کیسے حل کرنا ہے، دلائل میں ترجیح کیسے دینی ہے، اجتہاد کیسے چیک کرنا ہے کہ فلاں کا استدلال صحیح ہے فلاں کا استدلال غلط ہے۔ سمجھے کہ نہیں ہے؟ تو جس طرح آپ نے اصول فقہ پڑھ کر حدیث کو سمجھنے کے لیے صحیح اصول فقہ کو پڑھا ہے، اسی طرح حدیث کی صحت کو جاننے کے لیے حدیث کے متعلق آگاہی کہ یہ صحیح ہے یا ضعیف، اس کے لیے محدثین کے قواعد ہیں جنہیں اصول حدیث کہا جاتا ہے، جن کا تعلق دو چیزوں کے ساتھ ہوتا ہے، سند کے ساتھ ہوتا ہے یا متن کے ساتھ ہوتا ہے۔ امام علی بن مدینی کا قول ہے کہ التفقہ فی الحدیث نصف العلم، حدیث کے معنی کو جاننا، اس میں فقہ حاصل کرنا، یہ آدھا علم ہے۔ ومعرفت الرجال، اور اس کی سند کو جاننا یہ پورا علم ہے۔ یعنی جس انسان کے پاس حدیث کی صحت کا بھی اس کو پتا ہو اور اس کو حدیث کا معنی بھی آتا ہو تو اس کے پاس مکمل علم ہے۔ اب کتنے ایسے لوگ ہیں ان کے پاس فقہ تو ہوتی ہے، وہ معنی تو بڑا اچھا سمجھ رہے ہوتے لیکن ان کو یہ نہیں علم ہوتا کہ یہ حدیث صحیح ہے یا ضعیف، تو وہ پھر ضعیف روایات بیان کر رہے ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ہاں مجرم ہوتے ہیں۔ اور بعض لوگوں کو صحت کا علم ہوتا ہے لیکن وہ فقہ ان کے پاس نہیں ہوتی، تو انہیں فقہ حاصل کرنی چاہیے۔ یاد رکھیے گا کہ اگر یہ علم نہ ہوتا اصول حدیث کا، قواعد الحدیث کا، رجال کا، تو پھر سنت اور بدعت کے اندر کوئی فرق نہ ہوتا۔ جو لوگ آج بدعات کے اندر جو ہے ڈوبے ہوئے ہیں، ان کے پاس کیا چیز ہے؟ ان کے پاس یہ منہج نہیں ہے، یہ علم نہیں، وہ بیچارے یتیم ہیں، انہیں پتہ ہی کوئی نہیں ہے کہ صحیح اور غلط چیز میں، ایک نمبر چیز اور دو نمبر چیز میں فرق کیسے کرنا ہے۔ کیا خیال ہے؟ وہ جو بھی حدیث آتی ہے اس کو حدیث سمجھ لیتے ہیں، یعنی ان کے پاس وہ صلاحیت ہی نہیں ہے، وہ قواعد ہی نہیں ہے۔ بالکل تو یہ بہت بڑا فائدہ ہے اور یہ محدثین کا بہت بڑا احسان ہے کہ اگر وہ نہ ہوتے تو لوگ جو ہے وہ بدعات کے اندر سارے کے سارے ڈوبے ہوتے۔ جو لوگ حدیث کے ساتھ جڑ جاتے ہیں، حدیث کی برکت سے ان کے عقائد اور اعمال سدھر جاتے ہیں، ان کے اعمال میں بدعات کم ہو جاتی ہیں، نہ ہونے کے برابر۔ توحید کی بھی برکت ہے اور سنت کی بھی برکت ہے۔ توحید کو اپنانے سے انسان شرک جیسی گندگی سے دور ہو جاتا ہے اور سنت کو اپنانے سے انسان بدعت جیسی جو بدعت جیسا جو ناسور ہے اس سے بچ جاتا ہے۔ اس لیے اصول حدیث کا سب یہ سے بھی بڑا گندگی فائدہ، کہہ سکتے ہیں سر جی، بدعت بھی تو ہاں جی گندگی یہ ہے۔ بھی گندگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ لوگ آئیں گے، صحیح ہے، سیجی و اقوام،
ततजारा बिहिमुल अहवा, उनमें बिदात ऐसे फैल जाएंगी, कमा यतजारल कलबु बिसाहिबी, जैसे किसी बौले कुत्ते का सर जिसको वो काटता है उसके अंदर फैल जाता है। आपने देखा होगा अगर कोई कुत्ता बौला हो जाए, हल्का हो जाए, सही है, और वो किसी इंसान को काट ले तो उसके जरासीम क्या होते हैं? वो फैल जाते हैं, वो इंसान को फैल उसी जाते तरह हैं। बावला हो जाता है। वो बौला हो जाता है, वो काटने लग जाता है दूसरों को। बहुत बलीग तशबीह दी जी। आपने। फरमाया जो बिदअत है ना, उसका भी यही हाल है। जब ये किसी के अंदर आ जाती है तो फिर ये आगे मुंतकिल होती है, आगे फिर इसकी शोहरत होती है, आगे इसकी नुमाइश होती है, आगे इसकी दावत होती है। जबकि सुन्नत क्या करती है? सुन्नत बिदअत को धोती है, बिदअत को साफ करती है। तो इसलिए जरूरी है कि हम सही हदीस का इत्माम करें, हसन रिवायात का इत्माम करें, और लोगों को बताएं कि ये जो ज़ईफ रिवायात हैं ये दीन के अंदर फितना है। ठीक है। कितने लोग हैं जिन्होंने ज़ईफ रिवायतें उठाकर साहबा इकराम को गालियां दी हैं, उन पर तबर्रा की है, झूठी रिवायात उठाकर उन्होंने साहबा की तौहीन की, सैयदना अमीर मुआविया के ऊपर तबर्रा की है, सैयदना अबू सुफियान भी तबर्रा की। वजह क्या? उनके पास सही मनहज ही नहीं। कितने ऐसे लोग हैं जो बिदात के अंदर हैं, ठीक है, आप उनसे पूछेंगे उनको पता ही नहीं होगा। एक शख्स, उसको मैंने मगरिब के बाद 6 रखते पढ़ते देखा, मैंने पूछा कि ये 6 आपने क्यों पढ़ी? कहते हैं ये अव्वाबीन की नमाज है। ये कौन सी नमाज है? अब अब अभी अभी बहुत लोग कहते हैं सर। तो मैंने उनको गुजारिश की कि अव्वाबीन की नमाज तो सुबह होती है 9 बजे। हदीस के अल्फाज है सलातुल अव्वाबीनहीना तरमुदुल फिसाल या तुरमदुल फिसाल, जब ऊंटनी के बच्चे जो है ना उसके पांव धूप की वजह से जलने लगते हैं, तब अव्वाबीन की नमाज होती है। तो ये कौन सी? कहते हैं अव्वाबीन। वो फिर जब उसकी तहकीक की तो वो तबरानी के अंदर एक रिवायत थी और वो ज़ईफ रिवायत। मुझे लगा तो शायद उनकी अवाबीन छूट गई हो तो वो कज़ा कर रहे हो। नहीं, वो उस वक्त उनका टाइम है। नहीं नहीं, वो 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 ना कहते हैं एक मगरिब के तबरानी, बाद अवाबी होती है। जी वो पढ़ते हैं, ये खासकर जो तबलीगी लोग हैं ना पढ़ते हैं, सही है। तो वो उस हदीस की वजह से पढ़ते हैं कि जो 6 रकात पढ़ेगा उसको ये अजर मिलेगा। तो वो रिवायत ज़ईफ है। अब उन बेचारों की अमल की बुनियादी ज़ईफ हदीस पर, उनको पता ही नहीं है, सही हदीस के ऊपर उनका अमल नहीं है, ज़ईफ पे वो ले रहे हैं। तो ये फर्क है सही और ज़ईफ। और फिर इनमें से जो सही हदीस का इत्माम करते हैं वो भी बिदात से बच जाते हैं, सही है, लोगों को वो बचने की तलकीन करते हैं। तो सबसे बड़ी ज़रूरत वो ये है कि लोगों को सही मनहज और सही हदीस, शेख अलबानी रहमहुल्लाह वो ये तलकीन कर देते हैं कि मैं अपने मुसलमान भाइयों को ये ताकीद करता हूँ कि वो सही हदीस के ऊपर अपने मनहज और अकीदे की बुनियाद रखें, ज़ईफ को छोड़ दें फजाइल के अंदर भी, सही है। सही सही और आधे मसाइल तो सही हदीस से ही हल हो जाते हैं। क्या ख्याल है? जी शेख। ताजा मतलब ये जो शबरात है और ये रजब वगैरह के महीने में ये जो सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा बिदात होती है, मेराज बड़ी इबादत की जाती हैं। जब मैं छोटी थी, एक मुझे उस्ताद पढ़ाने आते थे, तो वो यही कहते होते थे कि ये आज की रात बड़ी कीमती रात है, जैसे शबरात की रात वो कहते थे 15 शबान, ये 22 रजब। तो तब बहुत ज्यादा नफली इबादत ये लोग करते हैं उस्ताद मोहतरम, हालांकि ये सारी रवायात की बुनियाद है ये नहीं बिल्कुल की। बिल्कुल इसी तरह, बिल्कुल इसी तरह। ये मुहर्रम का महीना है, सही है। शेख अस्सलाम वालेकुम। ये आवाज आई है किसी की? जी शेख, आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है। शेख आप ये किताबें कहाँ से मिलेंगी जो आप पढ़ा रहे हैं? मैं आज फर्स्ट टाइम मैंने ज्वाइन किया है, आलिया पार्ट 1। तो ये किताबें मुझे अगर मिल जाएं तो मैं पीछे से भी कवर कर लूंगा जो रह गया है सबक। आज फर्स्ट डे है मेरा। तो ग्रुप में या पर्सनल में व्हाट्सएप में मिल सकती हैं किताबें ये पीडीएफ में सारी? जी मिल सकती हैं। ये आप ना मकतबे से आप ना रब्ता करेंगे तो ये मिल जाएगी। ये अल-बलागतुल वाज़िह है, तफसीर मुख्तसर हदीस है, जलालैन है। तो आप मकतबा से रब्ता कर लें, मकतबा शेख इस्लामिया है उससे मुकरम, ये रब्ता कर लें। गलती से तो नहीं आ गई क्लास में?
ये शेख पूछे मेरा तो ना सही, मैंने अभी आप खासा आपका का क्या तारुफ है और आप किस क्लास में शेख आए मैंने थे? खासा का इम्तिहान अभी वफाकुल मदारिस का पास किया है। खासा का मैंने पास किया है, तो अभी आलिया पार्ट 1 में मैं इसीलिए आया हूँ। तो यहाँ से कि मकतबे का नंबर मुझे या कुछ दे दें ताकि मैं उनसे दे सकूँ किताबें। यानी आप हमारे साथ शामिल हो गए 5 सेमेस्टर में हैं? जी जी, लेकिन मैं खासा खत्म किया है ना अभी। मैंने वफाकुल मदारिस सलफिया पाकिस्तान का खासा अभी इम्तिहान मैंने दिया है इस्लामाबाद जामे सल्फिया से। सही। तो आप तो हमारे आना साथ जाना अभी मेरा इंशाल्लाह। मुश्किल है मदरसे को। जी शेख, तो मैंने कहा ऑनलाइन चले आगे कंटिन्यू करते हैं। जी शेख। तो इस तरह का कंटिन्यू हो सकता है सर जी कि ऐसे दरमियान में सेमेस्टर यानी कि शुरू कर सकें? दायरा भी हो सकता है, लेकिन इसकी एक शर्त है कि पहले शेख सुदैसिन से टेस्ट लेंगे, अगर वो टेस्ट क्लियर कर देंगे तो इनको नेक्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन मिलेगा। उन्होंने तो अच्छा मुझे अच्छा, वो तो बताया जी फिर कि कर आप लेंगे जब जी उन्होंने खासा ज्वाइन कर किया लें, तो फिर। सही। आपका किन क्लासें से शुरू रब्ता होंगी हुआ तो है? आप बस सुने लिंक ज्वाइन करके बस। यही कहा गया किन मुझे, से मैंने इसलिए आपको लिंक ज्वाइन किया आज। आप जी शेख। आपने किन से रब्ता किया है? नूरपुरी साहब, याहिया नूरपुरी साहब। जी ठीक है, वो ये है नूरपुरी से। सही। जी उन्होंने हमारी मुझे जो बताया था क्लास कि है वो उसमें हम सिर्फ सलाहियत के लिए पढ़ते हैं, मतलब जितने लोग भी पढ़ रहे हैं ना, सलाहियत पैदा करने के लिए। ठीक है। इसमें हमारा ज्यादा फोकस जी जो है वो तलबा के अंदर सलाहियत को मतलब पैदा करने में या मजबूती के हवाले से होता है। तो यानी ये है। जी शेख। बाकी आप जी शेख, ये किताब मैं माजरत चाहता हूँ, बात लंबी होगी। मैं चाह रहा हूँ कि जो मेरी ये कब से आपने शुरू की हुई है क्लासें, मतलब इस साल की कितना सबक रह गया ताकि मैं वो पीछे से फिर कवर कर सकूं, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ ये। आज हमारी पहली क्लास हुई है इस सेमेस्टर। अच्छा, पहली क्लास हुई है, ठीक है। जी सही है। पहली तो क्लास। किताबें शेख साहब मुझे मकतबे वालों का कोई राब्ता नंबर दे दें ताकि मैं किताबें उनसे पीडीएफ मंगवा लूँ। जी ठीक। जजाकुमुल्लाह खैर। अच्छा, तो ये जो चीज़ है ये आपने उसूल हदीस के वाले से ये मतलब पॉइंट जो है ना याद रख लो। और आखिरी जो हमारी किताब थी वो थी अल बलागतुल वाज़िहा। उसमें ज़्यादातर जो चीज़ें हैं वो हैं तशबीहात हैं। सही है। इल्मुल बयान है, यानी गुफ्तगू के अंदर एक चीज़ को दूसरी चीज़ का तशबीह कैसे देनी है। और मतलब है कि वो भी एक मुस्तकिल फ़न है, उसका ताल्लुक तफसीर के साथ है। कुरान मजीद में जहाँ जहाँ तशबीहात हैं, तो ये बलागत है। तो ये एक मतलब है कि बड़ा अहम ये भी शक्ल है। तो इंशाल्लाह ये भी फिर हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ठीक है। मुस्तला भी और ये अल बलागतुल वाज़िहा भी। तो आधा सेमेस्टर ये है और आधा सेमेस्टर जी वो दूसरी किताब। उसमें जो आम आम चीज़ें हैं इंशाल्लाह हम इन दोनों को फ़नून को इंशाल्लाह बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ठीक है। मुस्तला को भी और इंशाल्लाह अल बलागतुल वाज़िहा को भी। और इसकी तत्वीक फिर इंशाल्लाह हदीस पे हम करेंगे। सुनन तिरमिज़ी की सर जी, किताबें हैं। जी ये सेमेस्टर कितने महीने का है? जी जी। ये सेमेस्टर कितने महीने का होगा? सेमेस्टर वही 6 महीने का है या इसको थोड़ा सा एक्सटेंड किया है? इसमें दिन तो कम हो गए ना, लेट हो गया काफी। क्या ख्याल है? इसमें काफी दिन हमारे चले जी गए हैं। तभी तो मैं पूछ रही हूँ। किताबें जी दो हैं, बिल्कुल। दिन कम हो गए हैं। जी मेरे ख्याल में 25 22 23 दिन कम हो गए हैं। ऐसे ही है ना सर? जी दिन कम हो गए हैं। हम्म, हम्म। लेकिन शेख जैसे मोहतरम इस सेमेस्टर में कोई छुट्टी नहीं आएगी ना, जैसे ईद ईद की छुट्टियां होती हैं तो। हाँ ये है। ये ये यानी मुस्तकिल इंशाल्लाह होगा इंशाल्लाह। एक फ्लो के शेख साथ आज की चलेगा। क्लास शेख ये आज की क्लास कितने घंटों बाद अपलोड कर दी जाएगी यूट्यूब पे? ये यूट्यूब पे लाइव हो रही है। अच्छा, फौरन यानी फौरन बाद ये अपलोड हो जाएगी। हाँ जी, ठीक है। ये लाइव है, बिल्कुल लाइव हम पढ़ रहे हैं। तो आपको कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी, आप फौरन जो है वो
हमें हैरानगी इसलिए हो रही है कि आप हमारी क्लास में आए, हमें पता ही नहीं है। ठीक है, सही है, आपसे नहीं, तारुफ हम ये हैरान जरिए हो रहा है। परेशान तो थे सर जी कि एक नया नाम है हमारे साथ, सही, लेकिन बोल नहीं रहे थे तो हमें पता नहीं चल रहा था। ठीक हो, सही है। हमारा ग्रुप है, आप मतलब ना हमसे रब्ता कीजिएगा, उसको उसमें आपको ऐड कर देंगे वो क्लास में जो। ठीक है, प्रॉपर तरीके से फिर आपको जी पढ़ाएंगे शेख, इंशाल्लाह। मुझे मुझे जी मुझे शेख अभी करवा दें ग्रुप में ऐड आलिया पार्ट 1 का, और जो है ना ये मकतबे का वो नंबर भी भेज दें, मैं किताबें मंगा लूँ। नंबर कहते हैं तो मैं बोल देता हूँ, अभी लिख लें, आप कोई मेरा भी लिख लिख लें। लें। अब मेरे पास करीब कोई कलम नहीं पड़ी, तो ये एक मेरा मिनट लिख, शेख, मैं लिखता हूँ। ये मुझे फिर एक मैसेज मिनट कर शेख। दीजिएगा, मैं फिर आपका नंबर दे दूंगा। तो मतलब इनको जरा ये तो बता दे कि एग्जैक्ट तो सिलेबस हमने वो वाला पढ़ना भी नहीं होता जो वो वहां पे विभाग जी में पढ़ाते हैं, वो मैंने एग्जैक्ट इनको सिलेबस। बताया, मैंने और इनको हमारा गुजारिश की है कि हमने यहाँ सलाहियत के लिए पढ़ना है। ठीक है, हमारा वो और मतलब है ही बुक्स भी नहीं। मुकम्मल नहीं हो जाती। हाँ, हाँ जी, बुक्स यानी भी मुकम्मल नहीं हाँ, होती। बुक्स कि हमारी, इनके ज़हन में ये ना रहे बात तो फिर ये कि मतलब मैं इतनी देर पढ़ता रहा, अभी तो बुक्स भी नहीं मुकम्मल हुई, और तो खुद ही इन्होंने मेहनत करनी पड़ेगी, या कोई आपके तौर पर इनको कोई ट्यूटर रखना पड़ेगा या कहीं जाना पड़ेगा अदारे में, हाँ, हाँ, ये सिर्फ अगर निसाब। इन्होंने जी मैं सिलेबस। जी जी, जी मोहतरम भाई, शेख, हम नंबर बोले मतलब काइंडली। 0305 20 74 0305 657 20 74 74 657। जीरो तीन सौ 57। पाँच 20 हम्म, 74 657। ये हम्म। व्हाट्सएप नंबर है शेख। ये इस पे कॉल आप कर लें। ये व्हाट्सएप नंबर, ये व्हाट्सएप पे आप रब्ता कर लेंगे, मैं वो अ, जी तो एक बात आपसे करनी ये है ठीक है कि शेख। मैंने मतलब आलमिया हिस्सा दोम के ना पेपर देने हैं वफाक के, ये हम्म, जामिया सल्फिया के ना इधर वफाकुल मदारिस सल्फिया के, तो मैं वो अभी तक निसाब ही नहीं मैं पढ़ पा रही, तो मैं आप ही के साथ इधर चल रही हूँ, तो वो बुखारी का हिस्सा दोम पढ़ना है, इस तरह वो और भी कुतब है, तो वो ना पढ़ने की वजह से मैं पेपर नहीं दे पा रही, तो मुझे बल्कि मुझे कहते हैं सारे कि आप इसको छोड़ दो, आप सिर्फ वो अपना वफाक का पेपर दो, तैयारी करो उसकी। मगर मैं हम्म, पता नहीं, अब हाउस वाइफ भी हूँ तो घर में मुझे समझ नहीं आती कि मैं किस तरह मैनेज करूँ, या मैं इसको देख सकती हूँ या शेख, उसको देख। हम्म, हाँ शेख, मैं अगर इजाजत हो तो मैं थोड़ा कुछ बताना चाहता हूँ। अभी कुछ दिन पहले ना हमारे एक इसी तरह साथी ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, वो कहते हैं कि मैं यहाँ से, ये आप लोगों का जो इंस्टीट्यूट है, कहते हैं ये शॉर्टकट और बहुत बेहतरीन है, इसकी तैयारी करने वाला बंदा वफाक के तो बाएं हाथ की गेम है उसकी, यानी कि वफाक बिल्कुल आसान है उसके लिए, जो इधर सही पढ़ ले इनके। और जो किताबें हैं ना इधर की, जो जैसे ये बहन कह रही थी कि किताबें यहाँ की चेंज है, चेंज नहीं है, किताबें वही है, लेकिन थोड़ी सी शॉर्टकट किया हुआ है इन्होंने। यानी हाँ, किताबें वही हैं, लेकिन थोड़ा सा मुख्तसर और जामे किया हुआ है इन्होंने। हाँ, ठीक है जी, बाकी इबारत सही, पढ़नी आ जाती है, वही चीजें हैं सारी। मैंने सारा निसाब इनका रेट देख कर, तो फिर मैंने यहाँ पे आज फर्स्ट टाइम आया हूँ, ठीक इसीलिए हो, कि चले उधर हाँ, भी मेरा ना होने से कुछ होना बेहतर है, सही, तैयारी भी हो जाएगी साथ, जो 19-20 रही वो मैं इंशाल्लाह साथ खुद भी चले जी टाइम अच्छी दे बात, दूंगा। सही। जी जी। जी, आप हमारे साथ रहिए, हमें खुशी होगी। ठीक है, तैयारी हो जज़ाकल्लाह ना हो, शेख, इंशाल्लाह, बहुत इंशाल्लाह पढ़ना आ जाएगा इंशाल्लाह। सीखेंगे बहुत, आप शेख आप खुद से तैयारी पढ़ होगी लीजिए। ना आज इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, सही है। हाँ हम जी तो जी। कहते हैं पकड़ पकड़ के बंदे लाए इंशाल्लाह, क्यों जी? जी शेख, मैंने जी, और अल्हम्दुलिल्लाह पकड़ कई पकड़ के एडमिशन सिखाएंगे करवाए उनको। हैं। जी जी शेख, मैंने कई एडमिशन अल्हम्दुलिल्लाह कराए हैं, और मैं खुद भी जो मैंने क्लासें पढ़ी हुई है ना, यानी कि 5वां साल है समझिए ये मेरा, तो पहली 2-3 क्लासों को मैं अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश कर रहा हूँ पढ़ाऊँ भी, उनकी को पढ़ाने से मेरी अपनी जो 19-20 रह गई है वो पक्की हो जाएगी पढ़ाई, ठीक और है, भूलेगा भी ठीक नहीं, है। तो मैंने तो ये अल्हम्दुलिल्लाह। जी, जी चले, अच्छी बात, जज़ाकुमुल्लाह, अल्लाह ताला आपकी मदद फरमाए, अल्लाह ताला इस रास्ते को आसान फरमाए। आमीन। जी ठीक है, फिर आज के लिए काफ़ी है। वैसे रिजल्ट से पहले क्लास जो है ये है तो अजीब, क्या ख्याल है आप लोग, रिजल्ट हमारा उस्ताद मोहतरम, वो बसमला का जो आप बता रहे थे वो कहाँ पे उस्ताद मोहतरम वजाहत लिखी हुई है? कौन सी? जो वो जुलालैन में आया था ना, तफसीर जुलालैन में बसमला का हम्म, लफ्ज, तो आप कह रहे थे कि इससे मिलते जुलते अल्फाज मैंने आपको बताए थे, वो मुझे उस्ताद मोहतरम याद नहीं है, तो दोबारा जरा याद कर दें। वो हाँ, हमारी पिछले चौथे तीसरे सेमेस्टर की किताब जो सर्फ थी ना, हाँ उसमें उसमें लिखे हैं, सर्फ में ये ना, उसमें बिल्कुल उसमें ना, लिखी हमें हुई मैं है। कर
वहां से देख ले, तीसरी जिल्द में है शायद, या दूसरी। जी किताब में किसकी बात हम्म, खासियात वाले बाब में था। बिल्कुल, खासियत वाले बाब, बिल्कुल, बारकल्लाह फीक। सरफ, वो तो सरफ की बात हो रही है उस्ताद मोहतरम, उसमें है वो खासियत। वो भेज देंगे आपको इंशाल्लाह, ठीक है, मैसेज कर दीजिएगा, भेज देंगे आप। चलो ठीक है, दुआ करो। जी ठीक है, फिर आज के लिए काफी। जी सर जी। आप दुआ करें हैं, आप लोगों की विश आ जाए, ठीक है, रिजल्ट जो मगरिब के बाद है। क्या दुआ सही, करें सर जी? मैंने कहा वो बच्चे ना रिजल्ट से पहले दुआएं करते हैं कि या अल्लाह हमारी पोजीशन आ जाए। सही। या शेख अल्लाह, हम आज हम और तो दुआ इन करते में हैं से पास हो जाए। 3 फर्स्ट हों से 3 सेकंड हों, 2 थर्ड अच्छा, हों, हम सारे आप कहते एडमिशन हैं वाले हों। हम पास हो जाएं। सही। उस्ताद मोहतरम कितने बच्चों के टोटल रिजल्ट आने वाले हैं हमारा 4th सेमेस्टर में से? जी जी, कितने टोटल स्टूडेंट्स हैं हमारे 4th सेमेस्टर के जिन्होंने पेपर दिया? तकरीबन है मेरे ख्याल में, कितने चाहिए जी, 12, क्या 11, 11, 11। सर जी यानी भी आज ये राजा अनस भी कोई है, अनीस शायद। जी जी, ये हमारे साथ आज एक नया नाम राजा अनीस भी है, अनीस ही है मेरा ख्याल है। तो इनसे नहीं पूछा आपने कि कौन? ये फामुल कुरान के हैं और ये वैसे आ गए बरकत के लिए, इनको अच्छा बताना है। अच्छा अच्छा। ये फामुल कुरान की क्लास थी, सही कहा, इन्होंने बरकत के लिए वैसे आया। आज 5वां सेमेस्टर के ले लिए। उस्ताद तो इनका मोहतरम कुछ टाइम, 5th सेमेस्टर के भी तो स्टूडेंट्स थे, तो वो कहाँ गए? जो पहले 5th सेमेस्टर के थे उन्होंने भी तो क्लास लेनी थी हमारे साथ। कौन से 5 के? जिन्होंने पहले, हाँ जी, जी जिन्होंने पहले आप कह रहे थे ना स्किप हो गया है। जी जी, वो उनमें से कुछ आपके साथ शामिल थे, लुकमान भाई, सही, और डॉक्टर नाइला साहिबा शामिल थी। तो कुछ बीमार हो गए, मेरा उनसे रब्ता है, तो मेरे ख्याल में उनको तरगीब दिलाएंगे इंशाल्लाह। जी वाकल्ला। अच्छा वो थे जो हमसे अगला सेमेस्टर था। जी बिल्कुल, वो डॉक्टर नाइला साहिबा जो थी अच्छा अच्छा। आपके साथ, जिन्होंने कुछ शुरू में जी क्लासें जी ली हैं, वो अगला जी सेमेस्टर था। होती थी वो हमारे साथ। जी, चलिए। इसी तरह लुकमान भाई मेरे ख्याल में वैसे ग्रुप के अंदर आए हैं, क्लास में शायद नहीं शामिल थे जी या तो नहीं आए, क्लास तो नहीं ली। मैं क्लास नहीं ली उन्होंने। तो ये अब्दुल मनान साहब अब आए हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम और रहमत। हुजूर शेख कहाँ से? मोहतरम, शेख मोहतरम, बस कुछ ना पूछें, बहुत ज्यादा ना ऑफिस में ही हूँ अभी। बस आज अच्छा काफी मुश्किल तरीन दिन था, अच्छा, अभी भी फारिग, अल्लाह ताला इस आसानी वजह करे। से थोड़ा मैं तो लेट समझी हो सर गया। जी ये आपसे मुलाकात के शहर में अभी तक खोए हुए हैं। मर्जी है, ये बात वैसे सही है, मैं है उधर ही हूँ। सही है, अल्लाह ताला आसानी फरमाए जी। शेख मोहतरम ठीक है आप? शेख आपने जो है ना वो जवाब ही नहीं दिया, मैंने बाद में खैरियत पूछी थी कि पहुंच गए थे। कॉल मैंने आपको रात को शायद की ज्यादा थी। ही ज्यादा ही शहर में खो गए हैं उसके बाद। आज की जी जो शेख मोहतरम क्लास हुई है, थोड़ा सा खुलासा ही बता दें। तो बस हो गई, अब तो खुलासा बताएंगे तो शहीद हो जाएंगे चलें आप किसी दोबारा इसको ना, आप किसी उसको, स्टूडेंट से कहेंगे खुलासा बयान करे। आप असल में ना, आप ताज़ा दाम में, हम थक चुके हैं, ठीक है। नहीं नहीं शेख मोहतरम, मैं बहुत तो ज्यादा मसरूफ हूँ, सच्ची बात है, दिमागी तौर अपनी पे आप बुरा नहीं। रिकॉर्डिंग आप सुने। ना वो ना उससे ले लीजिएगा, यूट्यूब से ले लीजिएगा, ठीक है। तो अच्छा चले। ज्यादा नहीं पढ़ा, थोड़ा सा पढ़ा है उसका, जलालैन का थोड़ा सा पढ़ा है, शरह इब्न जी जी, अकील का कुछ पढ़ा है, सही है, उसूल हदीस की कुछ चीजें पढ़ी है, सही मैंने है। वैसे तैयारी की हुई थी, आज तो माशाल्लाह आज बस हमने मुझे बस मौका ही नहीं मिला। वो कहते हैं ना, बिस्मिल्लाह ही की है हमने, बिस्मिल्लाह। अच्छा चले, हाँ फिर रिजल्ट की बिस्मिल्लाह की। तैयारी करें हम। हाँ मैंने कहा दुआएं करें कि पोजीशन वगैरह आ जाए, सही। चले, चले चले ठीक है, अल्लाह ताला आपसे राजी हो, अल्लाह आमीन ताला इंशाअल्लाह। कर दे। बारकल्लाहु फीकुम, सुब्हानकल्लाहु व बिहम्दिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम।